education today is really failing students. Failing, but not in a bad way. It's misaligned. It's not designed to produce a holistic individual. Yeah. What concept we've learned until today, what we are following, that is good marks, good बच्चा. Academics पढ़ो, exam आ रही है, pressure दे दो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. Do you really think that somewhere they are losing their confidence with this process? बिकॉज बहुत सारे बच्चे हो जो शायद एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो, बट बहुत सारी दूसरी चीजें भी जिनके अंदर वो अच्छे होते थे. I guess we are in this digital world, right? And we have a lot of opportunities. Let your Yes. child just breathe and do what he or she actually wants. Very At true. least करने तो दो. What if I told you some of the most capable students today feel the most lost? They have marks but no direction. They have degrees but no confidence. And somewhere between expectations and reality, they start believing they are just average. But what if the problem isn't the student? What if the system itself was never designed to help them discover their true potential? Today's episode is not just about education, it's about confidence, identity, emotional intelligence, and stepping into global opportunities, even when you don't feel ready. We are joined by someone who turned personal loss into purpose, who went from feeling lost and protected to building a platform that helps students step into global spaces with confidence. Dr. Uzma Azim. Dr. Uzma Azim Charania is the director of Z Education, a youth mentor, global education advocate, and member of the Academic Council on the United Nations system. Her mission is simple yet powerful: to help students stop doubting themselves and start believing they belong in bigger spaces. This conversation might make you uncomfortable, but it might also change the way you see education and yourself. This is a Search podcast, and today's one thought is: maybe you were never average. You just never shown your real potential. Watch this entire episode and don't forget to like, share, and subscribe. Welcome to Ek Search, Dr. Uzmaji. Thank you so much for having me, Nirali. And thank you so much for being there. See, this topic is very close to my heart because education itself, I've also been a teacher. I've been a founder of preschools. I have worked with Cambridge universities. So this topic itself is very close to my heart, and it's privilege of ours to have you on Ek Soch podcast today. Thank you. It's my pleasure to be here. It's all my pleasure. So this entire podcast is about Ek Soch, one idea that changed your life. So me and my viewers would definitely want to start with your idea that changed your life completely. My idea was because, I've been privileged to get good quality education. And then I have seen children, they are abandoned by system. Not everybody is equally privileged. So I don't think when a child is born, it is his fault of not getting the privilege. So I want to make it available for all. I want education to reach everybody because the only thing that can change you, that can build you, is education. Because once you have it, there is something to fall back upon. Once you're educated, you don't need others. You don't need somebody else. You will be self-dependent, self-reliant. So I want every individual, so education to touch their lives so that they are self-dependent and they can fall back upon something. They can build something of their own. This is my whole idea. Lovely. And that is how you started your baby in the name of Z Education. Yes. And I really like the name. Would you like to share some insights on that? How did you thought of coming up with that name? I had this student who I was teaching, and I was just in the process of deciding a name. So there's this word she really likes. She like, we should name it Zenith. So Zenith is pinnacle, standing on the top. So I asked her that, why do you want me to name it Zenith? So she's like, I was at the bottom, you brought me at the top. So at Zenith. So still, it didn't click with me. Then I came across Z, the word Z, which means intelligence. So I'm like, let's keep it Z. Correct. And then I wanted to name it education, but then I found it too typical. So I made it education, and that is how it just happened. Z Education. Lovely. It's amazing. So how, how has been your entire entrepreneurship journey so far? It's been difficult, a lot of obstacles, but that is how everything is built. So, my idea was rejected. No, that this is not going to work. This is not how things are.
but then slowly, steadily, producing results, showing people that you can do it, change things. Now, people hear my name and they're like, yeah, okay, fine, we can go ahead with it. So that is how it is changed from not believing to I had to prove. There were a lot of things that I had to prove, show people that this is how it works, and gradually it just worked. Yeah, and I believe entrepreneurship is all adventurous journey. Yes. You cannot have like a straight road. Yeah, you cannot. It's always like uphill, downhill. That is how it goes. Yes. So let's understand this more, in detail. My straight question to you is: do you really think that education today is really failing student? See, honestly, failing, but not in a bad way. It's misaligned. It's not designed to produce a holistic individual. Yeah. What concept we've learned until today, what we are following, that is good marks, good bacha. Yeah. Okay, so there's always this validation that okay, you're scoring good marks, so automatically a good bacha. So that has to change, because education has to build your own personality. It's not just marks, and it has to change from rote to relevance. Yes. Because there's so many things I've studied, I've never applied it in my life. So it needs to become more relevant rather than just rote learning. बस पढ़ा रात को, next exam में उगल दिया. तो because you had good memory, that बच्चा he could score well. But then there's another student who's actually very nice, but नहीं आता उसको रट्टा मारना, और उसके मार्क्स खराब आए. So फिर वो वैलिडेशन नहीं मिलता उसको वो स्कूल के अंदर. So this is how it is misaligned. तो यहाँ पर I'll say that it's failing. Yeah, it is, because even I believe in what you're saying. आपने बोला कि जो भी चीज आप सीख रहे हो practically आप apply नहीं कर रहे हो. Right? Likewise, even I have not applied whatever I've learned in my past days. Yes. And that is where you rightly said that, holistic development is more important. True. Okay, I have seen, ma'am, many children who have scored brilliant, but still they are underconfident. Yes, because they were always reliant वो validation ना, मुझे अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं मम्मी डैडी के लिए मेरा अच्छा बच्चा, टीचर के लिए अच्छा बच्चा, प्रिंसिपल के नाम पे अच्छा बच्चा. तो जब वो वैलिडेशन चला जाता है लाइफ से, वंस आउट ऑफ स्कूल, तो फिर कौन वैलिडेट करने आ रहा है? तो कोई नहीं आ रहा. सो दैट इज व्हेन दे आर लॉस्ट. फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं. तो वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है. बट डू यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम which is typically मतलब एक ही पैटर्न चल रहा है, even after making lot of changes also, still the pattern remains same. Yes. Like घर से जाओ स्कूल, स्कूल से वापस आओ घर, academics पढ़ो, एग्जाम आ रही है, प्रेशर दे दो, पढ़ाई करो. Do you really think that somewhere they are losing their confidence with this process? They are, because बहुत सारे बच्चे हो जो शायद एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो, बट बहुत सारी दूसरी चीजें भी जिनके अंदर वो अच्छे होते हैं. दे विल बी गुड ओरेटर, डिबेट में अच्छे होंगे वो लोग कोई स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे. बट बहुत सारे मैंने देखा है कि अभी तो चलो पीपल आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग कि भाई स्पोर्ट्स में करियर बना है, नहीं तो फिर वो क्या मेंटालिटी थी, नहीं वो स्टेबल करियर नहीं है. तुम पढ़ाई करो, एक स्टेबल करियर लो, वो ऑफिस जॉब में जाओ. तो दैट इज व्हाट सक्सेस हमने वैसा डिफाइन किया है. तो वो चेंज करना है कि तुम अच्छा जॉब होने को तुम सक्सेस बोलते हो, तो ऐसे नहीं चलता है. इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई तुम्हारे पास अच्छा जॉब है, तुम कोई कंपनी के डायरेक्टर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सो यू आर सक्सेसफुल. दैट इज नॉट हाउ यू डिफाइन सक्सेस. करेक्ट. सो ये चेंज होना बहुत जरूरी है. दिस और इसके लिए वो माइंडसेट लाना, जो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब. आई हैव बीन ट्राइंग. एक डेकेड लगा दी मैंने, एंड स्टिल आई स्टिल हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, स्टिल हैव टू गेट इनटू पीपल्स हेड कि दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. So you have launched this company named Z Edustation. Yes. I really want to understand, how Z Edustation is different from our traditional education. Because see, academics is there. जो पढ़ाई करनी है वो तो करनी है, because system में रहना है हमें. But other than that, I encourage people to find their own self identity. That what defines you. जैसे आप और मैं हैं, तो हम at the day end we are humans. Correct. But then there's one thing that defines you individually. So I help students find that for themselves. कि वो कैसे करना है. And जब कोई नहीं है, when you don't have, because life is uncertain. हमेशा दोस्त नहीं होगे, हमेशा टीचर नहीं होगी, हमेशा मम्मी डैडी भी नहीं होगे. Absolutely. तो तब तुम कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो? How will you deal with things? When you're put under pressure, तो तुम कैसे उसको react करते हो? Do you lose it all, or you can like calm yourself down and then come to a solution? तो वो चीजें, लाइफ स्किल्स इम्पार्ट करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट इज मोर ऑफ माय फोकस विद एकेडमिक साइड. Correct. So when I was researching and going through your entire journey in entrepreneurship, what I also observed that COVID literally changed your life.
It's Would like actually to- changed everything. Hmm. You can say that it broke me and then it made me, because COVID was the time I also lost my dad, Oh. and it was all of a sudden. He Yeah. like, it was not that he was suffering for something or he had COVID. It was just cardiac arrest, and in 5 minutes he was gone. Oh my God. So I was his princess in a safe bubble, always Yeah. dependent. और मेरे लिए ऐसा था, हाँ पापा देख लेंगे, anything. Correct. And I'll tell you, I was a girl. I used to live in Andheri and my school was in Villeparle, like hardly 2 kilometers, and सीधा सीधा रास्ता था. उसमें भी मैं गुम जाती थी. I was that bad at roads. Yeah. Public transport से travel नहीं करना आता था. कहीं जाओ तो 1000 टाइम मैं उनको फोन करके पूछती, जैसे बैंड्रा अगर मासी के घर पे जाना था तो कंटिन्यूस कॉल्स या उधर पहुंच के फोन करना. तो वैसी थी मैं. फ्रॉम देयर कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड फिर कौन था, फिर मैं थी, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट सिबलिंग अमंग माय ब्रदर एंड मी. तो फिर वो छोटा है, तो फिर इफ आई ब्रेक तो फिर उसका क्या होगा. वो एक सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आ गई, वो हिट हुआ कि नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि अब टूट गए बिखर गए तो कुछ नहीं होने वाला है. तो वहां से अपने आप को संभाल के, एंड आई स्टिल रिमेम्बर. अब आई ट्रैवल, जैसे आई वेंट टू द यूएसए ऑल अलोन. वो 14-16 आवर्स की फ्लाइट मैंने ली. उससे पहले जो मेरी सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट सोलो जो मैंने ली थी वाज टू पोर्चुगल फॉर अ कॉन्फ्रेंस. आई स्टिल रिमेम्बर माय मॉम एंड माय ब्रदर केम टू ड्रॉप मी, एंड पता है मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जल्दी जल्दी भगा देते कि जल्दी जाओ. तो आई वेंट इनसाइड, मैंने घूम के देखा, द कार वाज गॉन, एंड मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मैं कैसे जाऊँ आगे. तो ऐसे नहीं था, नेवर ट्रैवल्ड, बट वो अकेले इतना लंबा जर्नी. So I still remember when I was checking my bags, and also the airport staff asked, "Ma'am, are you okay?" I'm like, "Yeah, I'm okay. I'm okay." The immigration officer also was looking at me that, "Do you need help?" I said, "No, nothing." So वहां से वो रोते रोते ट्रैवल करके अब ऐसा है कि हाँ, दुनिया के कोई भी कोने में भेज दो. So I think वो पूरी टूट गई और फिर वापस बन गई. ये हुआ मेरे साथ. I really understand this. Like, every father, like, daughter is kind of a princess to him. It's overprotection, like, over dependent. So with your conversation, I can sense that you were too much dependent on your father. Yes. Right. And all of a sudden, with this situation that happened, I mean, currently you are very independent, right? So how was that entire transition from being dependent to being independent? बहुत, I would say, very underconfident और बहुत डरा हुआ ट्रांजिशन था वो. मतलब ऊपर से अगर देखेंगे ना तो ऐसा लगता था हाँ कॉन्फिडेंट है, कर लेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट वो जो नाइट्स बीती रोते रोते, वो जो अकेले में, एंड देन फिर वो ओवर थिंकिंग, एंड कॉन्स्टेंटली वो एक अभी हैबिट बन गया. इवन इफ आई एम टॉकिंग टू यू, बैक ऑफ द माइंड कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, ये सही तो हो रहा है, ये कुछ गलत नहीं हो जाए, लोग क्या सोचेंगे. तो वो मैंने ब्रेक किया अपने लिए कि भाई मुझे नहीं देखना कि लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो, बस आई विल डू, क्योंकि करना है. करेक्ट. डू इट, डू इट ब्रोक, डू इट अनवेल, डू इट, बस कर दो. तो वैसे. So when we were communicating, when we were conversing, I came to know that you pursued CA. Yes. Right. So how did you choose this education and CA turning a teacher or being into education? See, I always wanted to become a teacher. Always. कि भाई teaching करना है, teacher बनना है. But my dad was a lawyer. So he wanted, because my brother वो तो बचपन से ही बोल दिया था मुझे लॉ नहीं करना है सबने. And he is someone बहुत वो खेल कूद में रहा है, उसका पढ़ाई से इतना नहीं. I was a little bookworm type की पढ़ूंगी. तो उन्होंने बोला कि लॉयर बनाया. सर इतनी मोटी बुक्स देख के मुझसे तो इतनी पढ़ाई नहीं होगी. So then he introduced me कि CA होता है, CS होता है, all of this. तो मुझे लगा चलो CA प्रैक्टिकल है, हो जाएगा करके. तो मिड वे में भी बहुत बार ऐसा था कि मुझे छोड़ना है, कि नहीं हो रहा है मुझसे. बट इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग. नहीं, वो मजा नहीं आ रहा था, वो दिल से नहीं आ रहा था. तो कितनी बार ऐसा है, वो सीए में वो 3.5 years की इंटर्नशिप होती है, तो लिटरली मैंने स्लॉक किया. मतलब मैं रोज जाती थी, फिर मन करता था आज कल तो जाऊंगी नहीं, कल से छोड़ दूंगी. वो हर रोज ऐसा बीतता था. बट फिर मेरे डैड ने अल्टीमेटम दे दिया था कि टीचिंग करना है, पहले सीए की डिग्री ला के दे, फिर टीचिंग कर. इनफैक्ट व्हेन आई टेल यू दिस, मैं चोरी छुपे ना जाके अपने जूनियर्स को पढ़ाती थी. देयर वाज दिस एकेडमी जो मैंने ज्वाइन कर ली थी. आई वाज इन सीए इंटर, जो फाउंडेशन वाले बच्चे थे ना, उनको मैं पढ़ाती थी. वाओ. तो वो क्या था, मेरे कंसेप्ट का रिवीजन भी था और किसी को पता भी नहीं चल रहा था. मतलब वैसा सेटिंग में था वो. तो आई थिंक 1.5 year डाउन द लाइन मेरे डैडी को पता चल गया था. Oh my God. तो एंड मैं बहुत डर गई थी कि अब वो कैसे रिएक्शन करेंगे. बट ही जस्ट स्माइल्ड इट ऑफ कि तू बाज नहीं आएगी, तुझे ये करना ही है. सो दैट इज हाउ. तो उन्होंने अपना डिग्री तो टेबल पर रखे थे, बाद में जो करना है कर. सो बस वही सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाना वहीं से स्टार्ट हुआ. टीचिंग जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई मेरी कि भाई करना ही है, टीचर ही बनना है, डे एंड में वही करना है.
So how did you thought कि अभी यार मेरे को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस करना है? बिकॉज आई थिंक जब तक ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो रियल डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि जब तक वो तुम सीखोगे नहीं कि क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस, दूसरे लोगों से मिलोगे, दूसरे कल्चर से मिलोगे, तो तुमको खुद अपने आप को पहचानते हो, एज एन इंडिविजुअल तुम खुद ग्रो करते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि एवरी इंडिविजुअल कुछ ना कुछ ग्लोज, एंड दैट इज नॉट जस्ट टूरिज्म ट्रैवलिंग, वहां पर जाओ, वहां पर सीखो, दूसरे लोगों से मिलो, यू नो, शेयर द सेम रूम विद देम, उनके साथ कुछ ट्रेनिंग लो, एंड दैट इज हाउ योर वर्ल्ड विल चेंज, इट विल वाइडन, इट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल. So it's more practically, yes, you know, training yourself, yes, and you know, correct, getting into that setup. I understand when you said that मैं पहली बार बाहर निकली तो मुझे पता ही नहीं था, I was lost. yes, You know, same thing happens with the children. yes, you know, they are overprotected. कहीं ना कहीं लोग होते उनके पास, yes, कहाँ पे भी ट्रैवल करवाने के लिए, but this kind of, you know, programs will definitely help children to go global and, you know, have that yes, kind of exchange yes, of culture. true. They can understand a lot of things. True. And also networking, because networking, yeah. I think अगर, और जैसे मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप को, सो अगर तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है तो नेटवर्किंग के बिना कुछ नहीं हो सकता यार, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. सो आई थिंक जितना ग्लोबल एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा अच्छी तुम्हारी नेटवर्किंग होगी, उतना ज्यादा तुम ग्रो करोगे, तुम ज्यादा स्केल कर सकोगे, इट बिकम्स इजियर फॉर यू कि तुम अपने एक बबल में बैठे हो तो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें जाना है, एंड दैट इज हाउ दैट थिंग्स विल चेंज फॉर यू. सो ये बहुत जरूरी है ग्लोबल एक्सपोजर होना. So I'm talking about education. Do you think, like, you know, आपको ऐसा कौन सी चीज लगती है that we teach our students which is a big lie? पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, एंड फिर अच्छा जॉब मिलेगा, तुम्हारी लाइफ सेटल्ड है. तो ऐसी लाइफ सबकी नहीं चलती. हाँ, 90% मतलब बहुत आर्ग्यू करेंगे मेरी तो लाइफ ऐसी ही चली, जैसे आई हैव पेरेंट्स बोलेंगे हम तो ऐसे ही कर रहे हैं. तो इट वर्क फॉर यू डज नॉट नेसेसरी मीन कि वो अभी काम करेगा. और वो जेन ज़ीज के साथ में, वो लोग तो कुछ अलग ही जनरेशन निकल के आए, बिकॉज आई एम डीलिंग विद जेन ज़ीज, और अब जो जेन अल्फा आ गए तो उनका कंसेप्ट ही अलग है लाइफ को लेके. तो तुम वो फील्ड से तुमको बोल नहीं सकते कि भाई पढ़ाई करो एंड जॉब लो एंड देन तुम्हारी लाइफ, शादी करो, बच्चे. सो दैट इज नॉट हाउ इट इज. Yeah, because they are very individual, right? Yes. They want to have lot of exposure. प्लस वो लोग बॉर्न ही हुए मोबाइल के साथ में. Yeah, हमने तो अभी सीखा है, कितनी चीजें हम अभी सीख रहे हैं, तो उनका जो वेवलेंथ पे आना है तो वो ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं काम कर सकता उनके साथ. And do you think that somewhere we are not working on emotional intelligence of student? Not at all, because इमोशनल इंटेलिजेंस इज गेटिंग अनकंफर्टेबल विद थिंग्स, और लोग किसी को भी ना अनकंफर्टेबल नहीं होना है. इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मेसी चीज है. तो उसके अंदर क्या है, और सबसे बेसिक चीज अगर इमोशनल इंटेलिजेंट होना है तो सेल्फ अवेयरनेस चाहिए. तो लोगों को वो नहीं करना है, बिकॉज यू नो दूसरों को बोलना तुम गलत हो इज वेरी आसान. अपने आप को मिरर में देख के बोलना कि ये तूने गलत किया इज नॉट इजी, एंड वो कोई सिखा नहीं रहा है. Correct. वहीं पर हो रहा है कि तुम्हारी जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तुम्हारी पर्सनल रिलेशनशिप हो गया, तुम्हारी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो उसी वजह से खराब है, बिकॉज इमोशनली इंटेलिजेंट तुम नहीं हो. IQ is not everything. Yeah. Yeah, you rightly said, and this is where I believe that they are losing on lot of life-changing opportunities. Yes, because of self-awareness नहीं है तो वो confidence नहीं है, and फिर उन लोगों को लगता है कि नहीं this is not for me, मैं क्या करूँगा, मुझे क्या जरूरत है, and then वही लोग जो मुझे बोलते आए हैं कि मुझे क्या मिलेगा इससे, 2 years down मुझे बोलता है I wish I had done that. तो फिर अरे उसने कर लिया, मुझे कर लेना चाहिए था. तो वो अपॉर्चुनिटीज सामने है, दिखती है, वो आती भी है, बट फिर रिजेक्ट कर लेते हैं कि ना इससे मेरा क्या फायदा होगा. तो वो एक जो हमारा जो इंडियन मेंटालिटी ना, मेरा क्या फायदा, वो एक हटना चाहिए, बिकॉज हर चीज में तुम फायदा, इमीडिएट फायदा नहीं होता है. Absolutely. तो वो एक मेंटालिटी शुड चेंज. जैसे आई हैड दिस रीसेंट ह्यूमन राइट एक्टिविटीज, तो आई टोल्ड माय स्टूडेंट्स अगर करना है पार्टिसिपेट करो. सो मेरे स्टूडेंट आस्क्ड मी विल वी गेट अ सर्टिफिकेट था, पर मैंने बोला आई एम नॉट श्योर. तो जो लोग ने सिर्फ सोचा ना कि हाँ मैं सर्टिफिकेट ले लूंगी और वो एड अप हो जाएगा, वो लोग ने नहीं किया. बट वो लोग जिनको करना था उन्होंने किया. जब उनको सर्टिफिकेट में दूसरा बोलता रहा हमने किया होता तो मैंने बोला आई वाज नॉट श्योर सर्टिफिकेट आ रहा है कि नहीं, बट अभी एंड में आ गया सर्टिफिकेट. तो वो वहां मैंने उनको रियलाइज करवाया कि भाई अभी सोच लो, बिकॉज लाइफ में हर टाइम सोचोगे कि क्या फायदा होने वाला है तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे. Absolutely, you rightly said, right? कि भाई हर एक चीज सर्टिफिकेट से नहीं होती है. You need to go deep dive, understand where the opportunity lies. True. It's very important. True. Apart from this, how does the education help parent or a children, and what all kind of services do you provide? See, the basic thing is coaching, जो बच्चों को students extra help जो चाहिए होती है for studies. Apart from that, there's this whole concept of homeschooling, because जहाँ बच्चे sports वो सब कर रहे हैं, they want to pursue a career in sports,
तो वहां पर बिकॉज वो रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा है तो उनको हेल्प करना. देन अदर देन दैट लीडरशिप, डिप्लोमेसी, टेक्नोमेसी, ये सब चीज की कॉन्फ्रेंसेस और वो सब ट्रेनिंग देना, इंटरनेशनल स्पीकर्स बुला के, सेंडिंग रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम कंट्रीज, डेलीगेट्स बना बना के उनको यूनाइटेड नेशंस ये सब भेजना कि उनको एक्सपोजर मिले दैट हाउ थिंग्स वर्क इंटरनेशनली. तो ऑल ऑफ दिस इज डन अंडर ZLU स्टेशन. So we're talking about homeschooling, Yes. right? Lot of parents are not in favor of homeschooling. Do you have some say in that? See, agar if your child sees himself or herself in a career which is say sports, जैसे I have students preparing for Olympics, okay, discus और shot put वो खेलता है, तो उसकी वो ट्रेनिंग ही 8-8 12-12 घंटे होती है. Yeah, correct. तो अगर 6 घंटा उसका स्कूल ले लेगा तो उसकी ट्रेनिंग हैम्पर हो रही है. एंड अगर बच्चा को वो करना है, अगर अपना करियर वो उसमें देखता है तो हमें सपोर्ट करना जरूरी है. तो होम स्कूलिंग में वो नहीं है कि बच्चा घर में बैठा और कुछ नहीं कर रहा है. दिस इज अ होल स्ट्रक्चर्ड कंसेप्ट जहाँ इट्स लाइक अ स्कूल, सेम वही पढ़ाई हो रही है, वही होमवर्क हो रहा है, वही असाइनमेंट सब हो रही है, बट फ्रॉम होम, कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे को मिल जाए कि वो अपना जो करियर जो स्पोर्ट्स में वो देख रहा है, जो भी चीज में देख रहा है, उसके साथ साथ उसके एकेडमिक्स भी पूरी हो जाए. सो इट्स अ होल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम. वो पूरा का पूरा स्कूल है, सिर्फ इतना वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो घर पे है. बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है इसमें. बट होम स्कूलिंग को लेके बहुत सारी मीथ है. Like I'm also a parent, right? Yes. So I wanted to start my child's homeschooling because he's also into sports. Yes. But eventually there are a lot of pros and cons. I always felt that यार अगर homeschooling करेगा तो socialize नहीं कर पाएगा. Do you really think that no, is because वो sports तो justified? खेलने, because socialize सिर्फ स्कूल में थोड़ी हो सकता है. अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, अगर उसको आप जाने दे रहे हो, वो जो इंटर स्टेट होता है, नेशनल्स होता है, एंड वो अगर अपना प्रोफेशनल कोचिंग के लिए जा रहा है, तो वहां भी तो वो लोगों से मिल रहा है. या करेक्ट. तो और वो बहुत सारे लोगों से मिल रहा है. जब वो स्कूल में जाएगा तो वो एक जैसे लोगों से मिलता है. वो वही एक मेंटालिटी, हम मार्क्स के लिए, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे इतने मार्क्स चाहिए, ये आई लाइक दिस टीचर, आई डोंट लाइक दिस टीचर, वही चलेगा. करेक्ट. तो वो कहाँ से सोशलाइजिंग हुई? सोशलाइजिंग में तुम्हारा डेवलपमेंट होना चाहिए ना. तो वो घर पे आइसोलेशन में तो नहीं बैठा ना, वो फिर भी बाहर जा रहा है. Yes. वो फिर भी दूसरे लोगों से मिल रहा है. So that is what socializing is all about. And I believe that homeschooling students are much more focused and way ahead than their standards or academics. Yes, because उनको पता है कि वो उनको उतना ही कम टाइम में उनको करना है, तो वो फोकस ज्यादा रहता है. बिकॉज हम कुछ भी अगर जैसे काम भी करते हैं तो अटेंशन स्पैन अगर हम हमारा भी देखेंगे तो 20-30 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं होता है. तो जब वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया बच्चों के लिए कि भाई इतने टाइम में मुझे एकेडमिक्स करना है, तो वो लोग क्या है कि जल्दी, एक तो उनको जान छुड़ानी होती है कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, तो जल्दी कर लेते हैं ये सब चीजें. तो ज्यादा कम टाइम में हम ज्यादा आउटपुट यहाँ पर देखते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखते हैं हम यहाँ पर ये चीज के अंदर. वेरी नाइस. आई मीन, और मुझे ये भी लगता है कि होम स्कूलिंग से ना दे बिकम मच मोर एडवांस एंड कॉम्पिटिटिव. एडवांस कॉम्पिटिटिव तो चलो ठीक है, बिकॉज वो तो आ ही जाता है. मतलब इफ यू, अगर वो, क्योंकि वो बंदा कुछ ना कुछ तो दूसरा परस्यू कर रहा है, मोर देन दैट वो सेल्फ अवेयर हो जाता है. उसको पता होता है कि व्हाट इज वर्किंग, कौन सा स्टाइल उसके लिए चल रहा है या नहीं चल रहा है. बिकॉज स्कूल के अंदर बच्चे जाएंगे तो एक ही सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं कि इसी तरह से पढ़ना है. बट जो बच्चा होम स्कूलिंग कर रहा है उसके अब तरीके देखो, उसकी चीजें अलग होती है करने की. दे आर मच मोर डिसिप्लिन, मच डिसिप्लिन. एंड वो तरीके से जो लोग याद करते हैं तो उनका सिस्टम ही अलग है कि कैसे. जैसे आई हैव दिस स्टूडेंट जो वो लिखता बिल्कुल, होम स्कूलिंग का बच्चा, वो लिखता बिल्कुल भी नहीं है, बट देन मैं जो उसको स्लाइड प्रेजेंटेशन करके बताती हूँ वो वहीं का वहीं उससे लर्न हो जाता है. एंड ही इज डन. वो मुझे होमवर्क भी इतना परफेक्ट उसका आता है, जैसे बोलते कॉपी करके लिखा है, तो उससे कितनी बार होमवर्क ऑनलाइन मेरे सामने किया है, दैट यू आस्क मी क्वेश्चन मैं बताता हूँ. तो उनका वो तरीका ही अलग है. उन्होंने खुद अलग अपना सिस्टम डेवलप किया है कि भाई हम कैसे फटाफट इसको कर ले. तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ चीज को कि भाई अगर ये स्कूल में होता तो वही वो घिसा पीटा पैटर्न फॉलो करता है. वो खुद अपना सिस्टम नहीं बना सकता कि मुझे ऐसे जल्दी याद होता है, ऐसे में जल्दी कर लूंगा. करेक्ट करेक्ट. But then still I believe कि awareness बहुत कम है homeschooling को लेके. Do you want to share something if a parent is even thinking of doing homeschooling for their children, and what is the process basically? See, the process is there are institutes जो homeschooling करवाते हैं, there are educators, there's a field, बहुत सारे educators, not just me. There's so many educators जो आपको हेल्प करेंगे कैसे रजिस्टर करना है. कैम्ब्रिज, अगर कैम्ब्रिज की हम बात करें तो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो अलाउ करता है कि भाई तुम होम स्कूलिंग पर्सनली भी तुम अपना कैंडिडेचर दे सकते हो. यू डोंट हैव टू गो थ्रू अ सिस्टम और अ स्कूल. एंड प्लस आई वुड से दैट इट बिकम्स अ लिटिल कंफर्टेबल फॉर द पेरेंट्स आल्सो, बिकॉज आई हैव दिस पेरेंट, तो उन्होंने खुद से होम स्कूलिंग ऑप्ट किया. तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला मुझे सुबह 5:30 बजे नहीं उठना है,
और फिर नहीं भेजना, क्योंकि जब मैं अच्छे मूड में नहीं रहूंगी तो मैं किस मूड से अपने बच्चे को भेजूंगी, उसको जबरदस्ती उठा के भेजना। तो मैं भी खुश रहूंगी, मेरा बच्चा भी खुश रहेगा। सो एंड मैनी टाइम्स ऐसा मैंने भी रिफ्लेक्ट किया कि मैनी टाइम्स ऐसा होता था जब मैं स्कूल में जाती थी, मम्मी का सुबह मूड अच्छा नहीं था तो दिन मेरा भी बकवास जा रहा था स्कूल में। तो अगर वो हम थोड़ा कंफर्टेबल पेरेंट्स के लिए करते, बिकॉज आज के जमाने में बहुत पेरेंट्स अब होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर उनको मिल जाती है कि वो होम स्कूलिंग के थ्रू उनका बच्चा पढ़ रहा है, तो एक बर्डन हटता है उनके सर से, वो पेरेंट भी खुद ज्यादा contribute कर सकते हो चाइल्ड की ग्रोथ के लिए। Correct. Very rightly said. So it's important. So to all the parents, basically, like whoever fear of taking up homeschooling, don't fear, because there are a lot of opportunities right there, and especially if your child sees careers in sport or some other profession, I guess it can help and make wonders. Yes, right, because they have education as well as they are focused in their career. Yes, दोनों साथ में हो रहा है। Yes. और is it very much age specific कि आपको ये एज पे यही स्टैंडर्ड परसीव करना है, या फिर यही एग्जाम्स आप दे सकते हो? विद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि तुम्हें मतलब वो एज ग्रुप के अंदर अपना ग्रेड 10 AAS लेवल्स आपको कंप्लीट करना है, बट स्टिल 2-3 साल की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट है कि वही एज में करना है, तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बट वो बेटर है कि वो साथ में ही कर ले, मेरी एडवाइस होती है। नहीं तो फिर होता है ना कि वो बिल्डिंग के भी बच्चे, उनका 10th हो गया, मेरा 10th नहीं हुआ, तो वो नहीं आना चाहिए। तो साथ हो जाए तो वो बेटर है, बिकॉज अल्टीमेटली तुमको सोसाइटी में रहना है, तो फिर वो ऐसा नहीं हो जाए कि मैं पीछे रह गया बिकॉज मैं होम स्कूलिंग का बच्चा था, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे चलता है वही सिस्टम से एनरोल करा के वही एज टाइम में अगर खत्म हो जाए तो बेटर। Say for example, if a child is coming to you in Z Education Private Limited for homeschooling, okay, what basically he or she gets, and what changes he basically perceive by end of the academics? जितना जहां तक मेरे बच्चों के साथ में एक्सपीरियंस रहा है, इट्स लाइक जो पूरी तुम्हारी पढ़ाई है वो हमारे पास होगी। वी हैव सब्जेक्ट टीचर्स एक्सपर्ट्स जो आपको पढ़ाएंगे, बाकायदा ट्रेन करेंगे जो भी, एंड विद केमिस्ट्री तुम्हारे पास सब्जेक्ट सिलेक्शन की चॉइसेस होती है, तो जो तुमने सिलेक्ट किया है उसके बाकायदा लाइक फुल प्रोफेसर पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तुम्हारे जो स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं, सेम बेसिक ग्रेड होते हैं, वही स्टैंडर्डाइजेशन से उनकी चेकिंग होती है, उनकी एनुअल एग्जाम्स भी होती है जो नॉर्मल होगा, बिकॉज 8-9 में बोर्ड एग्जाम नहीं होती है, तो नॉर्मल इट्स लाइक अ होल करिकुलम, बट यहाँ पर कर रहे हो तुम, अब अवे फ्रॉम स्कूल कर रहे हो, तो पूरी की पूरी वो स्कूल ही है। वी हैव सब्जेक्ट टीचर्स एक्सपर्ट, हमारे पास काउंसलर्स है, हमारे पास करियर गाइड्स है, तो वही हो रहा है, हैंड होल्डिंग फॉर द स्टूडेंट कि भाई कि नॉर्मल स्कूल में जैसी पढ़ाई चल रही वैसी ही चल रही, बट अ लिटिल फास्ट पेस्ड, अ लिटिल मोर फोकस्ड, वैसे चल रही है। So is it only academics, or apart from this also they have a lot of other trainings like leadership, entrepreneurship? ये सब goes hand in hand। जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती है जहाँ पर मैं कोलैबोरेट करती हूँ, MUNs हो गया, डिबेट्स हो गया, क्विज कॉम्पिटिशंस हो गया, यहाँ तक के आई नो दिस पर्सन हु इज आल्सो डूइंग होम स्कूलिंग, उनके तो बच्चे बाकायदा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए गए हुए थे, बीइंग अ होम स्कूल स्टूडेंट। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो इट्स नॉट, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। Lovely. So apart from this, they are also developing their skills. Yes, पिकनिक्स भी होती है, एनुअल डेज भी होते हैं, दिवाली पार्टी भी होती है, टीचर्स डे भी हो रहा है, चिल्ड्रंस डे, एवरीथिंग, सब चीज हो रही है। So you also have kind of a physical setup. Yes, I have a physical setup. Okay. वो होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन जैसे द स्टूडेंट्स हु आर जो अब्रॉड में है, जो मेरे दूसरे ग्लोबल स्टूडेंट्स है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं एक सेटअप है जहाँ पर जा रहे हैं। मेरे सब्जेक्ट के लिए मेरे साथ ऑनलाइन करते हैं वो लोग, बट यहाँ जो बच्चे अवेलेबल है तो उनको तो आना ही है फिजिकली। वो एक हाइब्रिड है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिक्स करके एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया हमने। So we are also talking about Gen Zs, right? Yes. Gen Zs जितने एक्टिव या जितना फास्ट है, at the same point of time they also have kind of self doubt. Yes. So have you been through such kind of students where they kept having that self doubt, and after your program or after your training they tried and developed that and came out of it? Yeah, I had this student, अभी last year की बात है, तो मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, she was very good at drawing also. Wow. But somewhere उसको ऐसा था कि आई एम नॉट गुड इनफ। वो एवरी टाइम कुछ भी करती थी, वो हमेशा ना व्हेन स्टार्टिंग में जब वो ग्रेड 9 में थी, हमेशा पूछती थी ये सही है, जब मैं बोल भी दूं सही है तब भी वो मुझे पूछती थी ये सही है, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर ग्रेजुअली वो हर एक चीज में वैलिडेशन मांगती थी, मतलब अगर उसने ये भी मैंने पहना तो मुझे सूट हो रहा है, 1000 टाइम पूछना, फ्रेंड को पूछना, एक दिन फिर मैंने उसको पकड़ा जब वो अकेली थी, और फिर आई हैड टू काउंसिल हर।
तब मुझे पता चला दैट यू नो इवन दो वो जो अपना अपीयरेंस लेके आते दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट, गुड मार्क्स स्कोरिंग स्टूडेंट, बट बहुत सेल्फ डाउट था ना। मैंने बोला कैसा क्यों है, तो इसलिए आई फील आई एम नॉट गुड इनफ। तो फिर वो पूरा उसके सेशंस हुए थे जहां पर यू नो हमने टॉक थेरेपी की थी एंड देन शी गॉट आउट ऑफ इट। एंड अभी तो वो मतलब शी डजंट इवन सीक वैलिडेशन। उसको बोला मैं गंदी लग रही है तो उसको बोलती तू गंदी लग रही है, तो ऐसे हो गया है। तो वो एक कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हो गया है। करेक्ट। सो हाउ कैन समवन ब्रेक आउट ऑफ दिस आई एम नॉट इनफ लूप? उसके लिए यू हैव टू जस्ट स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन, स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। नाउ व्हेन आई से परमिशन, ऐसा नहीं कि मम्मी डैडी बोल रहे मत जा तो भी जा, बट यू नो एट एन अडल्ट लेवल या जो भी, कि तुम अपने आप को दूसरे के लेंस से नहीं देख सकते हो, बिकॉज उनकी शायद माइंडसेट इतना है और तुम शायद इतने बड़े हो, तो तुम किसी और के से कैमरा के लेंस से देखोगे तो फिर तुम अपने आप को हमेशा कम ही पाओगे। करेक्ट। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर एंड जस्ट स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन कि अगर तेरे लिए सही नहीं है तो शायद नहीं है, मेरे लिए वो सही है। तो बस यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, कि बस ब्रेक कर दो वो सिस्टम के दूसरों के नजरिए से देखना। बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ, यस, very rightly said. Like, it's very important to believe in yourself and in what you do. Yes, which you did, right? You came to know about your likings at a very early stage of your education, your academics. Yes. कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को yes, टीचिंग करना है। yes, and so it's very important. do it। मतलब जैसे मैंने भी बोला ना कि चोरी छुपे बस मैंने कर लिया था, तो बस कर लो। जब तक तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुमको मालूम है कि अगर इफ यू आर हेल्ड अकाउंटेबल एंड तुमने आपको बता सकोगे तुमने कुछ गलत नहीं किया, ना किसी का नुकसान किया, ना किसी और को तुम्हारे से कुछ प्रॉब्लम होगी, तो फिर कर लो। then just do it। So you want to say something to the parents basically, like who always have this kind of doubt in their mind that sports में कोई career नहीं होता। I'm sure that you have a lot of children who are doing homeschooling and they are also pursuing sports as a profession. Yes, right? You have right examples for that. Would you Yes. like to share something about that? So my message is very clear कि करियर को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, क्योंकि बहुत सारी मदर्स है जो होम मेकर्स है, तो आपका भी तो वो करियर ही हो गया ना, तो आप करियर डिफाइन नहीं कर सकते हो कि यही करियर हो सकता है। तो आई वुड पर्सनली से कि भाई पहले जानो कि व्हाट यू आर गुड एट, सेल्फ अवेयरनेस लेके आओ बच्चे में, उसकी आइडेंटिटी वो खुद डिफाइन कर सके वो आप लेके आए, एंड देन हेल्प, उसको बस सपोर्ट करो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसी लिए पीछे रह जाता है कि यार मम्मी नहीं मानेगी, डैडी नहीं मानेगी। अगर तुम थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना, यू विल सी योर चाइल्ड डूइंग वंडर्स, और फिर आगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस वो एक इमोशनल सपोर्ट, एक पुश आप दे दो, एंड देन इट विल वर्क फॉर यू, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू एंड फॉर योर चाइल्ड। I guess we are in this digital world, right? And we have a lot of opportunities. Let your child just breathe and do what he or she actually wants to do in their life. Very At least करने तो दो। करने तो दो। Let them just deep dive, go through the entire experiences, and that's how they will excel. True. And फिर वो बच्चे बहुत ये भी एक है, I understand that money is important, ठीक है, तुमको सर्वाइव करना है तो वो पैसा कमाना जरूरी है, बट फिर उसको एक बार अपॉर्चुनिटी दो, खुद अपने तरीके से वो करने की कोशिश करे, और तुम उसको सिस्टम में मत डालो कि हमने ये किया एंड वी आर सक्सेसफुल तो तुम भी ये करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा नहीं चलता है। A lot of parents they have this mindset कि ये ही करो, एकेडमिक्स कंपल्सरी, क्योंकि हमने ये किया एंड हम जीता जाता एग्जाम्पल है। मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया। आई हैड दिस स्टूडेंट जिसकी मम्मी ने मुझे पूछा था कि बिकॉज उसे 12th के उस टाइम उसको अब्रॉड जाना था, तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे ना ग्रैंड पेरेंट्स से ये प्रेशर आ रहा है कि हमने इतना बड़ा बिजनेस बनाया क्यों, उसको तो वो आके कर लेगा ना, बट पहले उसको जो करना है वो तो करने दो। तो हमने इतना सेटअप किस लिए बनाया। तो हर माँ बाप की वो इच्छा होती है कि हम ऐसे हाथ में दे बच्चे को चीजें, बट फिर उसको थोड़ा तो एक्सप्लोर करने दो, थोड़ा मतलब जब तक उसको थोड़ा बाहर आने दो, बिकॉज लेट देम बी इंडिपेंडेंट के वो अपने आप को तो समझे पहले, एवरीथिंग इज सेकेंडरी देयर। या बिकॉज when you're so much dependent or all of a sudden आपको independent बनना है, it's not an easy journey. True. Right? So from day one, if you're putting that thing in your child's brain and you need to be independent, I'm not going to help you in any which ways, even though you have a legacy business which is already good and really doing wonders. But still I believe that as a parent, as a mother, you should always give that kind of exposure to your child that आगे जाके वो खुद इंडिपेंडेंट बने। ट्रू। एंड एडवर्सिटी बोल के नहीं आती है। वो कब नीचे हिट हो जाओगे तो वो नहीं पता चलता है। जैसे वो कभी बहुत सारी हम कुछ नहीं करे तो इकोनॉमी में कुछ हो सकता है। जैसे कोविड जब आ गया, कितने बिजनेसेस वो बंद हो गई, वो किसी ने नहीं सोचा था।
तो फिर तुम कैसे डील करोगे? तुमने तो बड़े बड़े सेटअप्स बना के दे दिए थे ना अपने बच्चों को, तो अब क्या हुआ फिर? तो करेक्ट, फिर वो कैसे डील करेंगे? तो हमको उसके लिए तैयार करना है बच्चों को। यस, टू बी रियल एंड टू हाँ। अंडरस्टैंड कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड वी आर रेडी, कुछ भी हम्म, आने दो एक बार, करेक्ट, मतलब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ तो मैं कुछ भी कर लूंगा, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं रुकूंगा, हाँ मेरा फ्रेंड आएगा तो मैं जाऊंगी, मेरी मम्मी मेरे साथ आएगी तो मैं ये करूंगी, या बहुत सारी विमेन ऑल्सो दैट ओके आई विल डू इट विद माई पार्टनर, मेरा हस्बैंड साथ में होगा तो करूंगी, तो वो नहीं, तुम कर लो, तुम्हें करना है, सही कर रहे हो, बस कर लो। करेक्ट। So, So we're talking about global Hmm. platforms, right? I Yes. really want to understand what it really takes for Indian student Hmm. to be on that global platform. बस वो फर्स्ट एप्लीकेशन करना। बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी भी जो चल रहा है, there's an upcoming conference जो चल रहा है, तो बहुत वो एप्लीकेशन लिंक से जो मैंने भेजी है, ठीक है, और उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है क्या है, क्या होने वाला है, एवरीथिंग। वो फॉर्म भरना है, देयर आर क्वेश्चन आंसर्स, एंड फिर शॉर्टलिस्ट में जाएगी। तो मुझे पूछते हैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। तुम बोलते अगर शॉर्टलिस्ट हो गया तो फिर हमको आगे नहीं मालूम, तो तुम सीखोगे ना। सो वो जो फर्स्ट स्टेप है कि तुम अप्लाई करो, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, अप्लाई करो एंड देन गो विद द फ्लो। अपने आप चीजें तुम्हारे लिए वो हो जाएगी। तो जो फर्स्ट स्टेप लेना है कि तुमको अप्लाई करना है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बिना कुछ नहीं होगा। तुम बैठे रहोगे, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, तुमने अप्लाई नहीं किया, देन तुम वहीं रहोगे, वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, जिसने अप्लाई किया उसके पास चली जाएगी। Correct. And do you really think, as an educator, it creates a lot of difference in a child's entire, like, personality or entire belief? Like, staying a child, being local versus a child going global. यस, बिकॉज उसका माइंडसेट इतना वाइडन हो जाता है, वो कितनी सारी चीजें वो सीखता है, लोगों से बात करना सीखता है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो सीखता है। क्योंकि अगर वो लोकली है तो फिर उसको लोकली नॉलेज है कि क्या है क्या नहीं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट नॉट इवन अवेयर कैसी कोई चीज हो रही है दुनिया में। Correct, correct. तो जब तुम बाहर जाओगे तो मिंगल करोगे दूसरे लोगों के साथ, तो तुम्हें पता चलता है दैट हाउ थिंग्स वर्क इंटरनेशनली, हाउ पीपल डील विद ईच अदर। बस वो सब चीजें सीखना जरूरी है हमें आजकल। तो बिकॉज इंटरनेट से हमें लग रहा है ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया तो है, आई कैन कनेक्ट विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, बट वो सोशल मीडिया पे वो सामने वाला बंदा रियल है कि नहीं। तुम यहाँ जाओगे तो हमारे रियल कनेक्शंस बनते हैं, रियल इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। And those international exchange programs really help students. Yes. Once they are back, we see a different personality. Yes. Right? It's very important to have that kind of exposure. But according to you, do you really think that people are missing on a lot of global opportunities because there is no awareness? एक अवेयरनेस नहीं है, और ऊपर से अगर अवेयरनेस है भी, बिकॉज अगर आज तुम लिंक्डइन, जैसे बच्चों के पास भी लिंक्डइन आ गया है, एंड अगर इंस्टाग्राम देखेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। तो बस वो जब पढ़ते हैं उसका में फिर लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए बना हुआ है करके। तो वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम उसके लिए बने हुए हो। तो ये तुम सोचो कि तुम क्या उधर वहां पर जाके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। वही बोलते कि ये मेरे लिए नहीं बना, तुमने कैसे डिसाइड किया? तुम ट्राई करोगे तो पता चलेगा ना। करेक्ट, करेक्ट। तो दैट इज हाउ अवेयरनेस होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं कर लूं, एक बार करके देखूं। तो बस वही हमको एक पुश देना है कि भाई एक बार करके देखो, होगा नहीं होगा वो इवेंचुअली पता चल जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। सो can you just share one or two opportunities, global opportunities, or where a person can go and register for those opportunities? Okay, so अभी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, इट्स एट थाईलैंड में जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस सेंटर है, वहां पर लीडरशिप प्रोग्राम हो रहा है। जहाँ वी हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, जहाँ की लीडरशिप लोग ट्रेन करेंगे। प्लस वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू द डेलीगेट्स टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। तो तुम जाओगे तो मैं उज्मा फ्रॉम अंधेरी ऐसे नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग उज्मा फ्रॉम इंडिया। तो पूरा एक तुम्हारा representing India, you're representing your country there। तो एक अलग वो प्राइड ही अलग होती है जब तुम तुम्हारे फ्लैग के साथ वहां खड़े हो। देन वहां पर नेटवर्किंग है, कल्चरल नेटवर्किंग प्रोग्राम है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। प्लस वी आर टेकिंग एनकरेजिंग जो जितने भी यूथ है कि वो अपना पेपर्स सबमिट करे, रिसर्च करे, कोई टॉपिक को लेकर उसे सबमिट करे, एंड जो बेस्ट पेपर्स होगा वो हम पब्लिश करेंगे, जो 50,000 पीपल ऑल ओवर द ग्लोब पढ़ेंगे। तो दैट एक्सपोजर, एंड प्लस जो सोशल मीडिया पे तुमको एक्सपोजर होगा और इतने लोगों से जो तुम मिलोगे, और फिर जो दूसरे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है वो तुम्हें पता चलेगी। सो दिस इज इट्स कमिंग एज अर्ली एज जून, उसके एप्लीकेशन अभी चल रहा है। Wow, that's amazing. You're also a speaker at United Yes, Nations I am, yes. in India. Like, would you like to throw some insights on that? जैसे like I told you that मैंने भी जब 2024 में first this came to me opportunity, मैंने अप्लाई नहीं किया था कि मैंने सोचा था this is not for me, but then I slept over that thought। फिर मैंने सुबह सोचा कि एक बार करके देखते हैं, and then फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। My interview was bad, it was really bad। मुझे लगा मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, but then I got selected।
Wow. एंड देन आई वेंट, जब मैं वहां गई तो बाकायदा जब मैंने वो इंडिया का फ्लैग लेके जब मैं खड़ी थी, तो वो अलग ही फीलिंग थी कि आई एम नॉट जस्ट समबडी, कि मैं बस ऐसे जैसे लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है ये, तो वो एक अलग जो मुझे फीलिंग आई। एंड प्लस फिर इतने कनेक्शंस मैंने बनाए, जैसे मेरी फोन बुक आई एम एट 24,000 कॉन्टेक्ट्स जस्ट थ्रू Oh ऑल my दिस। God. एंड देन फिर वहां से मेरे पेपर सबमिशंस हुए, देन पीपल स्पोक टू मी, एंड देन फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एवरीथिंग जो मैं काम करती हूँ, कि मैं बाकायदा टॉक एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो मैंने बाकायदा फिर यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आई हैव स्पोकन अबाउट what I'm working for human rights, what I've been doing and what I aim to do. तो वो इतने लोग उससे एसोसिएट हुए हैं। There's this orphanage, Womb Foundation. So I'm one of the trustees there. तो वो एक्सपोजर मिला, and I've had so many people who've come forward कि we want to help, हमें हमसे जो हो सके वो हम करेंगे। तो वो बच्चों के लिए, वो ऑर्फन बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज लाना और वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आना, वो भी दिस इज लाइक हेल्प मी अ लॉट, कि इतने लोगों को अवेयरनेस मिली है एंड सामने से लोग आए हेल्प करने के लिए। तो जो छोटी सी चीज थी कि हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, टू पीपल कमिंग कि वी वांट टू डू इट फॉर यू, वो एक पूरा ट्रांजिशन मैंने देखा है। So whatever you are doing, Uzmaji, I mean, it's brilliant, because I'm sure that you started at one person and now you have a lot of educators along with you. Yes. Right? You are taking education to another level, from again Trying. local to international level, Yes. right? And also you're carrying students from here, Yes. right? At a global platform. Yes. So talking about thought leadership, like no one talks in school level, right? Thought leadership की बात नहीं करते, entrepreneurship की बात नहीं करते, जो भी बच्चा कर रहा है खुद अपने तरीके से कर रहा है। So do you have some say in that, or would like to throw some more insights or share your perspective? मेरा पर्सपेक्टिव है, अगर स्कूल लेवल पे है तो मैं वो स्कूल की मैनेजमेंट और वो जो ट्रस्टीज है उनको बोलना चाहूंगी कि एकेडमिक्स इज समथिंग यू आर डूइंग एक्सीलेंट, मतलब तुम्हारे स्कूल वो सब में हो रहा है, बट स्ट्राइव फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस। स्ट्राइव के तुम्हारे जो बच्चे हैं वो ग्लोबल एक्सपोजर हो, ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स वो सब के लिए जा सके, एंड यू नो एंड मैनी टाइम वो थोड़ा कभी कभी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन भी आ जाता है, वो ट्रैवल कॉस्ट, तो आई वुड रिक्वेस्ट दीज बिग इंस्टीट्यूशन एजुकेशन स्पॉन्सर करो बच्चों को, तो कि वो बच्चों का तो नाम हो रहा है, तुम्हारा भी साथ में नाम हो रहा है, यू नो यू विल बिल्ड अ बेटर एजुकेशन सिस्टम आउट ऑफ दिस। तो ये इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज लेके आओ, मीट पीपल, ब्रिंग इट टू योर स्टूडेंट्स, मेक इट इजियर फॉर स्टूडेंट्स के उनको अवेयरनेस हो, एंड अब्रॉड नहीं जा रहे बच्चे तो फिर ऐसे ग्लोबल लीडरशिप प्लेटफॉर्म्स को तुम्हारे यहाँ लेके आओ, इनवाइट देम। जैसे आई एम स्ट्राइविंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस हियर इन इंडिया जहाँ मैं लेके आ सकूं, तो मेरा बस एम है ये कि जितने भी स्कूल के बच्चे सबको मैंने कंपलसरी के अटेंड करना है, तुम्हें आके ट्रेनिंग लो, तो वो एक ड्रीम है। I'm trying to conceptualize it. देखो अब कैसे, how I'm it sure works. and I wish you all the best Thank for your you so dream, and I much. really want educators like you to like, you know, bring some change in this whole academic era, because it is creating only a volume when you talk about academics, that is not creating a thought leader. True, very true. Right? It is very important to have that kind of leadership in a children, where you know they don't feel that self-doubt all the time. True. And be more confident, because I'm sure that you know this Gen Zs and Gen Alpha, they already have confidence. कूट के भरा हुआ बहुत है उनके पास confidence, मतलब I don't see a child who is on stage has any kind of fear. True. Right? So why not we as a parent or an educationist or as an institution push them to a level wherein you know they can get that kind of exposure. So wish you all the best in whatever you're doing. I just want you to describe the education in one line, like you know, which is very powerful. It's not just academics, it's your whole persona, it's your whole identity, and it is how you recognize yourself. So that is all the education is all about, not just academics, everything. Thank you so much. Now we are heading towards our rapid fire round. It is the last segment of our show, which is very interesting. I love that. So whatever questions I'm going to throw, you just have to answer it in one word. Okay. Are you ready for it? Yes, I'm ready. All right then. Marks versus skills. What matters more? Skills, any day. Confidence, born or built? Built. Absolutely. One thing every student must stop doing right away. Seeking validation. True. One thing parents are getting completely wrong. The whole system. Acha marks, acha bacha. That thing.
Exactly, but अच्छा marks और अच्छा बच्चा is not creating a successful child. True. Opportunity comes to everyone, true or false? It comes to everyone. Yes. Yes. True. You just need to be receptive when it comes. Yes. Right? Yes. वो बोलते हैं ना मुंह धोने नहीं जाना चाहिए जब Right. अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है. राइट, वो बोलते हैं ना कि नसीब जब बांटे तो छन्नी लेके मत खड़ा हाँ, रहो. exactly. So thank you so much once again. I had wonderful conversation. Thank you so much. And it was wonderful to understand, like, you know, there are a lot of ways to pursue education. Right? Yes. It's not only typical school setting or institution setting. You True. can do it online and offline, both the ways. Homeschooling is something which is, again, which plays nowadays a big role because children are more focused towards their career. True. I had this student grade 10 के अंदर, उसको खाना पकाना बहुत पसंद था. ठीक है, तो सब उसको बोलते थे क्या करेगी, हाउसवाइफ बनेगी करके ऐसे चिढ़ाते थे उसके फ्रेंड्स. बट हर डैड, उन्होंने उसको 10th का नॉर्मल, उसको 11th 12th नहीं करने दिया. उसको culinary स्कूल जो उधर लेके गए. And now she's a Michelin star restaurant USA में. She's the head chef there. तो that is also a career. अगर उसको हमने घिसा पिटा दिया होता कि तू 11th कर 12th कर फिर कुछ ना डिग्री ले ले, वो क्या कर रही होती. And today what she is way ahead. And वो जो मेंटालिटी आती है वो क्या कमाएगा, तो वो जितना कमा रही है उसके काउंटर पार्ट्स उतना कमा भी नहीं पा रहे. बिल्कुल भी नहीं. तो हर चीज में करियर तुम बना सकते हो. एंड तुम लोगों को अपने प्रोफेशन से डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ये काम करता है तो ऐसा. इट इज नॉट दैट वे. And also one change which I want to bring in this education system, that there are a lot of other professions and there are a lot of other titles. Yes. Okay, it's not only typical CA, CS या फिर कॉमर्स करो, ये कर लो, वो कर लो, डॉक्टर बन जाओ. There are a lot of things apart from that. Yes. Right, and the awareness again, it's very less. True. Right. So it's very important, like, you know, educationals like you and your entire setup should try and bring over a change. We've been trying, we'll keep trying. Lovely. So thank you so much once again. Thank One you. last message for our platform, एक सोच, one idea that changed your life. I think ये बहुत अच्छा मुझे कंसेप्ट लगा जब मैंने वो पढ़ा भी. एक सोच, अब लाइक के बहुत सारी चीजें जो होती है वो एक सोच पे ही डिपेंड करती है. एंड वो चीजें तो वो वहां वो ना वो सोच को इंस्पायर करना एंड फिर लोगों को लाना कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके. इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट यू आर डूइंग, निराली. एंड आई होप कि ऐसे बहुत सारे लोग आए अपनी सोच लेके और वो दूसरों तक अपनी सोच पहुंचाए. यू नो, वी कैन बिल्ड a place where, you know, everybody can thrive together. Absolutely. Thank you so much once again. It was a privilege for me to sit today with you and understand more about how this education system can bring a lot of change, and we can have global collaborations, and students can also have exposure where we have global platforms which are welcoming them. Yes, true. So thank you so much once again, Thank you. and have a wonderful day. To all the viewers, don't forget to like, share and subscribe. So friends, if today's conversation made you rethink your potential, then this episode did its job. You were never average. You were just never shown your real worth. You were just never shown your real worth. Thank you, Dr. Uzma Charanya ji, for sharing such an honest and powerful journey. This is Ek Soch podcast, where one thought can change your direction. Share this with someone who needs to hear it, and we'll see you in the next episode. Till then, have a wonderful day.